these different types of cultures. And so first we will study what is a callus and what are callus cultures and how can we establish cell suspension culture. So callus is an unorganized mass of thin-walled parenchyma cells. Formation of wound callus is observed in all groups of living organisms. A plant tissue culture में callus is produced by cultivation of plant tissue or nutrient media under in vitro conditions. Presence of growth hormones in the culture media promotes callus formation and proliferation. इसका मतलब ये है कि जब भी आप एक्सप्लांट को कल्चर करेंगे टिश्यू कल्चर मीडिया पे, the media without growth hormones cannot induce callus. For callus induction, you need to add growth hormones, especially auxin in the media. Callus cultures establish करने का क्या purpose है? What is the role of callus? In vitro callus provides totipotent cells for plant regeneration via organogenesis or somatic embryogenesis. ये जब कैलस इंड्यूस होता है इसको हम यूज कर सकते हैं प्लांट रीजनरेशन के लिए. और प्लांट रीजनरेशन के दो पाथवेज हैं, ऑर्गेनोजेनेसिस और सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस. ये हम बाद में जब रीजनरेशन का चैप्टर पढ़ेंगे तो इसमें दोनों पाथवेज डिटेल से पढ़ेंगे. देन कैलस इज यूज्ड एज अ टारगेट टिश्यू फॉर जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन. जब भी आप कोई एक्सप्लांट like leaf segment, stem segment, nodal segments, when you culture them on the media and establish callus, this can be used for genetic transformation. You can introduce a foreign gene in this callus and regenerate a transgenic plant. Then callus formation is initiated from plant regeneration of other transformed tissues. The other transformed tissues can also be used for initiation of callus. ना सिर्फ ये कि हम नॉन ट्रांसफॉर्म टिश्यू से कैलस इनिशिएट कर सकते हैं, बल्कि एक ट्रांसजेनिक प्लांट के पार्ट्स लेके उनसे भी हम कैलस इनिशिएट कर सकते हैं. Dispersal of friable callus into single cells is used for initiating cell suspension culture. आज का लेक्चर कैलस और सेल सस्पेंशन दोनों के बारे में है. When you start callus cultures, then you can transfer the established callus in the liquid media. अगर आपने MS और उस MS मीडियम में 240 ऐड की है और callus इंट्रोड्यूस किया है, that is the solid medium, तो आप यही liquid MS मीडियम में 240 यूज करके इस लिक्विड मीडियम में उस कैलस को ट्रांसफर करके उसको शेकर पे रख देते हैं. So that's how you establish the cell suspension cultures. तो कैलस एस्टेब्लिश करने के कोई ना कोई पर्पस है. कैलस का रोल ये है कि आप जब भी कैलस टिश्यू कल्चर में एक्सप्लांट से कैलस बनाते हैं, कैलस आपको टोटिपोटेंट सेल्स प्रोवाइड करता है जिससे आप पूरा प्लांट रीजनरेट कर सकते हैं, कैलस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट से कैलस इंड्यूस कर सकते हैं और कैलस से सेल सस्पेंशन कल्चर्स इनिशिएट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये जी एप्लीकेशंस ऑफ कैलस इन प्लांट टिश्यू कल्चर एंड जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन. यहाँ आप देख सकते हैं कि एक एक्सप्लांट फॉर एग्जांपल स्टेम का एक पीस है, स्टेम सेगमेंट. यू हैव कल्चर्ड दैट एक्सप्लांट on the callus induction medium. For example, you can say this is MS medium having 242 milligram per liter. ठीक है, आपने कैलस कल्चर के लिए ये मीडिया यूज किया है and you have cultured the stem explant on this medium in this petri dish. So after 1 week callus initiation starts and from 2 to 4 weeks the explant forms callus. जब भी आप एक मीडिया पे एक्सप्लांट को कल्चर करते हैं, the explant gets the nutrients from the media and you can culture the explant for certain time period on the petri dish of that contains the callus induction media. And if you keep on culturing the explant on the same petri dish for more than 4 weeks, तो उससे क्या होगा कि सारे nutrients एक्सप्लांट जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा और मीडिया ड्राई अप हो जाएगा. So once you have cultured the explant on the callus induction media and you have noticed that callus formation has started, then after 2 to 4 weeks you
transfer those cultures to the same fresh medium. Same fresh medium means that if you have used MS plus 2,4-D 2 milligram per liter for callus induction, you will transfer the callus plus this explant on MS plus 2,4-D medium that have you freshly prepared. So this process of transferring the callus to the same fresh medium is called subculture. Subculturing is really important when you perform 1 to 2 subcultures unless until the whole explant is converted into callus. That is called the complete proliferation of the explant in the callus. Okay, so once the callus is induced, then we can this you can see there is no explant now. The whole explant is transferred into the callus. It means that you have subcultured this callus from 2 to 4 times on the on the same callus induction medium. So this callus can be transferred to the liquid medium that its composition is the same as the solid medium. You transfer these small pieces of the callus in the liquid medium in the flask and keep it on the shaker, and this becomes the cell suspension culture. Again, you can transform this callus, and this is the transgenic callus, and from this callus you can regenerate the transgenic plant. Two pathways. One is organogenesis, and the other one is somatic embryogenesis. Okay, organogenesis is a pathway in which the callus directly forms shoot and root organs, and they develop into the plant. And somatic embryogenesis is the pathway of plant regeneration under tissue culture conditions, in which callus first forms the somatic embryos, and from these somatic embryos, plant is regenerated. So, from transgenic callus, you can regenerate the complete transgenic plant. Then, from this callus, you can regenerate the complete plant, simple plant without any transformation. And from this cell suspension, you can transfer the cell suspension into the somatic embryos, and then from these somatic embryos also you can regenerate the plant. Cell suspension has many uses. You can regenerate the plants, you can extract the secondary metabolites from this cell suspension, and you can isolate the protoplast also from this cell suspension. So this is a very important slide. It shows all the uses and applications of the callus culture. So how we initiate and maintain callus cultures? First of all, the important point which you need to consider is selection of suitable parent material. Then is the choice of explant and method of isolation of these explants. Then culture medium and conditions that are required to initiate the callus cultures, and optimization of culture conditions. So first of all, we will see that how we can select the parent plant. Parent plant is a plant from which you isolate the explants. So parent plants be healthy and free from decay or disease. And parent plant or mother plant, it can be actively growing and not be about to enter a period of dormancy. आपने एक्सप्लांट उन मदर प्लांट से एक्साइज करना है जो हेल्दी हैं, एक्टिवली ग्रो कर रहे हैं और किसी भी डिजीज या डोमेंसी पीरियड में एंटर नहीं हुए. ठीक है, और प्रेफरेबली अगर मदर प्लांट्स इन विट्रो कल्चर में ग्रो कर रहे हैं, दैट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ द एक्सप्लांट्स. लेकिन अगर आपके पास इन विट्रो कल्चर्स में ये प्लांट नहीं प्रेजेंट, तो फिर आप इनको ग्लास हाउस से या फील्ड से कलेक्शन कर सकते हैं. अब आपने सिलेक्ट कर लिया है कि दिस इज मदर प्लांट which I will use for explant excision. Then plant are you going to use and how are you going to isolate this explant? This is the second point. Any part of the mother plant, plant organs or specific plant tissue or plant cells can be used as the explants. Explant must contain living cells. Then younger tissue is more callus responsive due to the presence of large number of actively dividing cells. Explants isolated in sterile conditions, and also we need to ensure proper sterilization methods for a particular explant. मतलब इसका यह है कि मदर प्लांट का कोई भी पार्ट आप यूज कर सकते हैं एज एक्सप्लांट,
उसके बाद उसमें भी आपने यही देखना है कि एक्सप्लांट जो है वो क्लीन हो, लिविंग सेल्स उसमें हो, और उसके बाद वो बहुत मेच्योर एक्सप्लांट ना हो। यंगर टिश्यूज जो हैं वो मोर कैलस रिस्पॉन्सिव होते हैं, और उसको आप एक्सप्लांट जब एक्सरसाइज करें, अगर तो इनविट्रो कल्चर से ही आप लीफ ले रहे हैं, नोडल सेगमेंट ले रहे हैं, तो आपको स्टेलाइज करने की जरूरत नहीं है, हमेशा ये बात याद रखें। लेकिन अगर आप एक्सप्लांट जो है वो फील्ड में मदर प्लांट लगे हुए हैं और आप उनसे एक्सप्लांट एक्सरसाइज कर रहे हैं, देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टेराइज दीज एक्सप्लांट्स। और आपने स्टेरिलाइजेशन कैसे करनी है? यू नीड टू यूज द स्पेसिफिक स्टेरिलाइजेशन कंडीशंस फॉर ईच एक्सप्लांट. As I told you earlier, that if you have soft tissues like leaves and stem tissues, you will use the sodium hypochlorite. And if you have seeds and hardwood tissues, then you will use mercury chloride. So there, and then if you are using the inflorescence that is wrapped in the leaves, like wheat immature inflorescence or sorghum immature inflorescence, you need to only wipe the outer surface of the leaves with the ethanol, and you can, under in vitro conditions, lab airflow conditions, you can remove those leaves and culture those inflorescence. You don't need to use mercury chloride or sodium hypochlorite for this type of explant. So from explant to explant, your choice of the sterilant or and your sterilization method changes. Then is the culture medium and conditions that are required for the initiation of callus. Culture these sterilized explants on suitable autoclaved culture medium. ठीक है, incubate the cultures at 22 to 24, you can make it 26 also, plus minus 2 degrees centigrade in light or dark. ये आपने डिसाइड कैसे करना है? आई टोल्ड यू दैट whenever you want to start a tissue culture experiment, you collect the literature about that particular experiment which you are going to perform. और उसमें फिर जो कल्चर कंडीशंस उन ऑथर्स ने यूज की होती हैं, यू ट्राई टू फॉलो दोज इंस्ट्रक्शंस. सो अगर आपने वीट पे काम करना है एंड यू आर यूजिंग द इमेच्योर इन्फ्लोरेसेंस फॉर इंडक्शन ऑफ कैलस, तो आप पेपर में पढ़ेंगे कि उन्होंने कितना टेम्परेचर पे कल्चर्स को स्टोर किया है, एंड यू विल यूज द सेम incubation conditions, temperature and light conditions. अगर उन्होंने कल्चर किए हैं और उसके बाद उनको डार्क कंडीशंस में रखा है, तो आप उसको कैलस कल्चर्स को डार्क में रखेंगे, और अगर उन्हें थ्रू आउट लाइट कंडीशंस में रखा है तो आप उसी अकॉर्डिंग चलेंगे. ये क्रॉप टू क्रॉप वेरी करता है प्रोटोकॉल. देयर इज नो प्रोटोकॉल यूनिफॉर्मली यूज फॉर ऑल द प्लांट स्पीशीज. हर स्पीशीज के लिए आपको incubation और कल्चर का प्रोटोकॉल डिफरेंट यूज करना पड़ेगा. मोस्ट कैलस विल बी इनिशिएटेड फ्रॉम द कट सर्फेसेस विद इन 3 to 8 वीक्स, बल्कि इससे भी पहले 1 to 8 वीक आप इसको कर सकते हैं. कैलस इंडक्शन शुरू हो जाती है 1 वीक के अंदर. आपके बहुत ही यंग और रिस्पॉन्सिव टिश्यूज हैं. उसके बाद एक ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कल्चर कंडीशंस. आप कल्चर कंडीशंस को स्टैंडर्डाइज से करते हैं. सबसे पहले, as I told you earlier, consult literature to know previous callus initiation attempts for the species under consideration. अगर आपने हीट पे काम करना है तो आप पेपर पढ़ें और देखें कि इससे पहले क्या मेथड्स यूज हुए हैं. ठीक है, लेकिन अगर आपने ऐसी क्रॉप पे काम कर रहे हैं जिस पे पहले कोई काम नहीं हुआ, फॉर पायनियरिंग कैलस कल्चर अटेम्प्ट, तो उस सूरत में मॉडिफाई मीडियम प्रीवियसली यूज फॉर अ रिलेटेड स्पीशी. अगर आपने ट्रिटिकम एस्टिवम यानी वीट पे काम करना है, उसके लिए तो plenty of literature is available. But for example, if you are working on Triticum diurum, जो कि एक different species है, but no literature is available for that particular species, so you can use the medium of that is used for the related species. यानी आप Triticum aestivum पे जो medium use हुआ है, आप वही अपनी species के लिए use कर सकते हैं. Start with one of the defined media and manipulate hormone concentrations. Defined media वो है जिनकी concentration जो है वो स्टैंडाइज हो चुकी है. लाइक आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर्स, एमएस मीडियम, N6 मीडियम, यूएम मीडियम, गैम्बर्ग मीडियम. आप बेसिक मीडिया लेते हैं और उसमें हार्मोन की कंसंट्रेशंस डिफरेंट
उसकी कंसंट्रेशंस यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल इफ यू आर यूजिंग 2,4-D, तो फिर आप MS मीडियम में एक कंट्रोल ट्रीटमेंट होगी जिसमें कोई हार्मोन यूज नहीं किया, और बाकी जो आप मीडिया के टाइप्स यूज करेंगे they will be MS medium with different concentrations of 2,4-D. Like MS in one medium you will use MS plus 1 milligram per liter 2,4-D. In medium number 2 you will use 2 milligram, 3 milligram, 4 milligram. So different, you will use different types of media and then culture the explants on all the different media and compare the growth of the explant on these medias. The media that shows the best growth of callus will be chosen and you will use that medium throughout your experiments. ठीक है. उसके बाद है कि अगर तो आपके पास कोई पेपर नहीं है फॉलो करने के लिए और पहली बार आप काम कर रहे हैं उस क्रॉप के ऊपर, then you need to set up a growth latent scare of 25 culture plates with 5 each of auxin and cytokinin concentrations. तो फिर आपने क्या करना है, आपने ऑक्सिन और साइटोकाइनिन की डोज खुद से इस्टेब्लिश करनी है. आपने खुद से एक स्कीम बनानी है कि मैं ऑक्सिन और साइटोकाइनिन किस किस रेशियो से यूज करूं कि सारी कंसंट्रेशंस चेक हो जाएं और मुझे बेस्ट मीडिया मिल जाए. इस तरह की स्कीम को आप कहते हैं दिस इज द लेटेंट स्केयर ग्रोथ डिजाइन. ये मैं आगे आपको दिखाऊंगी. और जरूरी नहीं कि इसमें 25 कल्चर मीडिया ही बने, इसमें कम भी बन सकते हैं, ज्यादा भी. दिस इज अप टू यू कि आप कितनी ट्रीटमेंट्स मीडिया की बनाना चाह रहे हैं. कैलस फॉर दिस ग्रोथ ट्रायल शुड बी यूनिफॉर्म ऑफ लार्ज साइज. इस तरह के ट्रायल के लिए जहां आपने चेक करना है कि कैलस जो है वो किस तरह परफॉर्म कर रहा है, उसको जब कैलस आपने निश करना है तो एक जैसे कैलस स्पीसीज को आपने डिफरेंट मीडिया ट्रीटमेंट में कल्चर करना है. ये देखिए आप, दिस इज द लेटेंट स्केयर अरेंजमेंट फॉर टेस्टिंग मीडिया कॉम्बिनेशंस ऑफ ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन. ठीक है. यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल साइटोकाइनिन BAP आप यूज कर रहे हैं, आप उस कंसंट्रेशन सेट करते हैं. दिस इज जस्ट एन एग्जांपल. आप इससे बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आपने सोचा है कि अच्छा पहला तो कंसंट्रेशन होगी 0, एक मीडियम है वो बनाऊंगा जिसमें कोई साइटो. ठीक है. उसके बाद आपने कंसंट्रेशन क्या किया, you have started with 0.5 milligram per liter BAP. उसके बाद 0.1, पॉइंट के बाद 1, उसके बाद 1.5, उसके बाद 2. तो ये आपने सोचा है कि अच्छा ये कंसंट्रेशंस BAP की आई वांट टू ट्राई. आपने नोट किया होगा कि ये एक जैसे इंटरवल से बढ़ रही हैं. पहले 0.5 है, फिर उसमें 0.5 और ऐड कर दिया, 1 में 1.5 और ऐड कर दिया. आपने हमेशा जब ट्रीटमेंट फिक्स करनी है तो वो एक इक्वल इंटरवल से बढ़नी चाहिए. ऐसा नहीं है कि आप पहले 0.5 कर लें, फिर 0.6 कर लें, फिर 1 कर लें. ऐसे नहीं होगा. एक ही जैसे वक्फे से वो ट्रीटमेंट्स बढ़ेंगी हर किसी में. अब आप एक दफा 0.5 आपने रखी है तो 0.5 ऐड करते जाएंगे. अगर आपने 0.1 रखी है तो इट कैन बी 0.2, 0.4. अगर 0.2 है तो 0.4, 0.6, 0.8. सो ग्रेजुअल इंटर की ट्रीटमेंट्स बढ़ेंगी. इस तरफ जो है वो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन आप प्लॉट कर देते हैं. ठीक है. ऑक्सीजन फॉर एग्जांपल आप Na यूज कर रहे हैं या 2,4-D यूज कर रहे हैं, तो आपने ये सोचा है कि पहली कंसंट्रेशन तो होगी 0, उसके बाद 0.5, उसके बाद 1, 1.5 और 2. तो ये आपने उसकी कंसंट्रेशन सोची है कि मैं इतनी इतनी कंसंट्रेशन उनकी यूज करूं. तो जो पहला मीडिया होगा, मीडिया नंबर 1, उसमें आप ये देखें 0 और 0. ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन की कंसंट्रेशन 0. ठीक है. दूसरे मीडिया में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन 0.5 है और जो आपका साइटोकाइनिन है उसकी कंसंट्रेशन है 0. फिर जो मीडिया नंबर 3 है, मीडिया नंबर 3 में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन 1 है और साइटोकाइनिन की कंसंट्रेशन 0 है. ठीक है. ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है 1 मिलीग्राम पर लीटर और साइटोकाइनिन की कंसंट्रेशन है 0. समझ आ रही. इसी तरह नंबर 4 जो है उसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन 1.5 और साइटोकाइनिन की कंसंट्रेशन 0. इसमें साइटोकाइनिन की कंसंट्रेशन फिक्स रहेगी और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है. फिर आप नेक्स्ट ट्रीटमेंट बनाएंगे. साइटोकाइनिन की कंसंट्रेशन 0.5 है
ठीक है। मीडिया नंबर 6, इसमें साइटोकाइनिन 0.5 और ऑक्सिन 0। अगला मीडिया नंबर 7, साइटोकाइनिन 0.5 और ऑक्सिन भी 0.5, साइटोकाइनिन 0.5, ऑक्सिन 1। इसी तरह सारे जो हैं 25 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया आप यहाँ पे उसको प्लान कर लेंगे कि इतने टाइप्स ऑफ मीडिया जो है वो मैं टेस्ट करना चाह रहा हूँ। आप अगर इतनी डोजेस नहीं टेस्ट करना चाह रहे, आप कोई कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। ठीक है। आप थोड़ी कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं बेटे। आप 1.5 तक रह सकते हैं, 0.5 1 तक चेक कर सकते हैं, 1.5 तक चेक कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर टाइम। और लेकिन आपको ये सारी जो है लेवल्स चेक करने पड़ेंगे, तभी जाके आप देख सकते हैं। ये फिर ये देखें, ये फॉर एग्जांपल दिस इज एमएस जिसमें ऑक्सिनोसाइटोकाइनिन आपने 0 यूज किए हैं, तो देयर इज नो ग्रोथ। ठीक है। उसके बाद ये अगला मीडिया, ये उससे अगला मीडिया है। तो जब आप इस मीडिया के ऊपर ग्रोथ को चेक करेंगे और कलर्स को अंदाजा हो जाएगा कि कौन सा मीडिया जो है जिसमें कल्चर्स बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, और उसमें से आप वो एक टिपिकल मीडिया चूज कर लेंगे। So this is how you design your experiment if no literature is available, and you design your experiment in which you fix oxygen and cytokinin concentrations, all possible combinations, and you culture the explants on each media. For example, you prepare 20 petri dishes of MS not media in which there is no oxygen and no cytokinin, and this will be used as a control. Then in the media number 2, you will again have 20 plates. You will culture leaves in this media also, in this media, in this media, in all 20 medias you will culture the explants, and then you will compare all these explants, and then from the media that shows the best growth of the explant, you will choose and select that media for all your future experiments. Okay, so we have studied so far that if you want to initiate callus cultures, you need to choose the parent plant that should be healthy and that should be actively growing. Then explant is excised from these healthy plants, and explants also should be uh, the ones that have the actively growing cells, and they should be young explants and be isolated in the sterilized conditions. Then you need to culture the explants in the typical medium, and the medium which you use, you will choose the medium from the already published research papers. But if there is no research, then you design the medium treatments according to this Latin scare arrangement, and you culture the explant on all different combinations. And this is just an example. You can have different treatments here. Instead of 0.5, you can have 0.7, 0.1, different. And instead of, sorry. सो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल कि आप इस तरह मीडिया की ट्रीटमेंट्स उसको सेट करते हैं प्लॉट, और इस तरह उनमें से चूज करते हैं। अब है कि कैलस जब इनिशिएट होता है तो कितनी टाइप्स का कैलस, टाइप्स ऑफ कैलस कल्चर्स। ठीक है। कैलस कल्चर्स जो है, यू कैन हैव टाइप 1 कैलस, टाइप 2 कैलस, टाइप 3 कैलस एंड टाइप 4 कैलस। ठीक है। नॉर्मली 4 डिफरेंट टाइप्स के कैलस कल्चर्स आपको नजर आते हैं। This is the type 1 callus is yellow, nodule-like, compact, and more rapidly and efficiently converted into embryogenic callus than other types of callus. This is the type 1 callus, जो बहुत ही येलो, ब्राइट येलो कलर की होती है, और उसमें छोटे छोटे नोड्यूल्स बने होते हैं, कंपैक्ट होती है, और इससे आप फौरन ही जब आप इसको साइटोकाइनिन पे शिफ्ट करते हैं तो ये एम्ब्रियोजेनिक हो जाती है। इसमें एम्ब्रियोजेनेसिस है कि जिससे एम्ब्रियोज बनते हैं और प्लांट रीजनरेट हो सकता है। तो दिस इज द प्रिफर्ड कैलस किसी भी एक्सपेरिमेंट प्लांट रीजनरेशन के लिए, एज वेल एज फॉर इनिशिएशन ऑफ सेल सस्पेंशन कल्चर्स। देन टाइप 2 कैलस, इट इज पेल येलो, irregularly shaped, soft and rarely but rapidly converted into embryogenic callus. ये second number वाली जो callus है, this is the type 2 callus. Then type 3 callus is loose, watery,
और ये इसमें एम्ब्रियोजेनिक पोटेंशियल कम होता है एज कम्पेयर टू दीज टू टाइप्स। और टाइप 4 कैलस है वो कॉटन लाइक होती है, वाटरी है, और ये वाटरी होती है और इसमें रीजनरेशन पोटेंशियल काफी कम होता है। ठीक है, उसके बाद है सेल सस्पेंशन कल्चर्स। सेल सस्पेंशन कल्चर्स क्या होते हैं? जब आपने कैलस इनिशिएट कर लिया, उसी लिक्विड मीडिया में आपने उसको ट्रांसफर कर देते हैं आप, तो उससे सेल सस्पेंशन culture initiate हो गया है. Cell suspension cultures are rapidly dividing suspensions of cells grown in liquid medium. They grow more rapidly than the callus cultures and more amenable to culture manipulations. मतलब इसका ये है कि वो क्योंकि लिक्विड कंडीशन में सेल्स को आपने प्लांट किया होता है और उसको शेकर पे रखा होता है, तो वो उनकी ग्रोथ ज्यादा रैपिड होती है। कैलस में तो आपने सॉलिड मीडिया के ऊपर एक्सप्लांट आप कल्चर कर देते हैं, लेकिन लिक्विड मीडिया में क्योंकि वो शेकर के ऊपर लगातार शेक कर रहे हैं, तो उससे है कि उनमें एरेशन उनको मिलती जाती है और वो इजीली ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद जब भी आपने डिफरेंट ग्रोथ हार्मोन की कंडीशंस चेक करनी होती हैं, तो आप सेल सस्पेंशन कल्चर्स जो है वो यूज कर सकते हैं। इसमें ज्यादा जल्दी आपको उनका इफेक्ट पता चलता है। It comprises of cell aggregates and dispersed single cells. जब आप कैलस के पीसेस करके लिक्विड मीडिया में डालते हैं, तो उससे सेल सस्पेंशन इनिशिएट होता है। ठीक है, उसके बाद है जी सेल सस्पेंशन कल्चर जो है वो कैसे आप इनिशिएट करते हैं? मोस्ट कॉमनली यूज स्टार्टिंग मटेरियल इज ऐसे ऐसा आप यूज करते हैं कैलस कल्चर्स जो कि इजीली उनके आप पीसेस कर दें लिक्विड मीडिया में। जैसे आप टाइप 1 कैलस जो है वो बेस्ट है इसके लिए। ठीक है, उसके बाद आप उसको पहले छोटे में उसको इनिशिएट करते हैं, और जब उसमें सेल जो है उसकी क्वांटिटी बढ़ती जाती है, तो फिर आप उसको बड़ी फ्लास्क में और ज्यादा मीडिया में उसको ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, दीज आर दी सेल सस्पेंशन कल्चर्स। और स्पेसिफिक फ्लास्क जो हम उनको यूज करते हैं उसको आप कहते हैं एर्लन मेयर फ्लास्क। ठीक है, और इसको आप ये फ्लास्क आप ऑटोक्लेव करेंगे अलग से, और जो कैलस कल्चर्स हैं इनको आप लेके आएंगे एयर फ्लो के अंदर, और उसमें आपने फ्लास्क के अंदर लिक्विड मीडिया पहले आप डाल देंगे, और फिर कैलस के पीसेस जो है इन फ्लास्क में डाल के, इन फ्लास्क के ऊपर ये जो एल्यूमिनियम फॉयल है इसको चढ़ा के, एल्यूमिनियम फॉयल फ्लास्क के ऊपर चढ़ा के ही ऑटोक्लेव करेंगे। ठीक है, एयर फ्लो में आके आपने एल्यूमिनियम फॉयल उतार के साइड पे रखना है, इसमें लिक्विड मीडिया और कैलस डालना है, और एल्यूमिनियम फॉयल दोबारा चढ़ा लेना है। जरूरी नहीं है कि इस पे रबर बैंड चढ़ाएं, लेकिन टू बी ऑन द सेफ साइड आप इस पे रबर बैंड भी चढ़ा देते हैं। दिस इज द टिपिकल शेकर। इसमें ये हर फ्लास्क के लिए अलग से ये क्लैंप्स लगे हुए हैं ताकि फ्लास्क गिर न जाए। और ये शेकर देखें आप, इस शेकर जो है वो इसमें 2 फ्लोर भी होते हैं, 3 फ्लोर भी होते हैं, और शेकर की स्पीड जो है, शेकर जो है वो ऑर्बिटल शेकर होता है, वो गोल गोल उसके चक्कर होते हैं, और स्ट्रोक रेंज एक जो उसका स्ट्रोक होता है वो इतने इतने इंचेस का होता है, और स्पीड शेकर की आप फिक्स कर सकते हैं 30 से लेके 150 आरपीएम, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द कैलस। फॉर एग्जांपल, अगर आप पोटैटो के कैलस से सेल सस्पेंशन इनिशिएट कर रहे हैं, तो आप 80 से लेके 100 रेवोल्यूशन पर मिनट है, रेवोल्यूशन पर मिनट, तो आप 100 तक जा सकते हैं। लेकिन अगर आप वुडी प्लांट लाइक सिट्रस के सेल सस्पेंशन कल्चर इनिशिएट कर रहे हैं, तो फिर आप 2130 आरपीएम तक बहुत फास्ट स्पीड पे भी शेकर को सेट कर सकते हैं। तो स्पीड फिक्स नहीं होती, ये वेरी करती है फ्रॉम कैलस टू कैलस। अब आपने अगर सेल सस्पेंशन कल्चर इनिशिएट कर लिए हैं, तो फिर उसको मेंटेन कैसे करना है? इधर आपने उनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या कहते हैं उसमें, फ्लास्क में उनको कल्चर करते हैं टू स्पेस रेशो। आपने उसको इतनी उसमें स्पेस होनी चाहिए कि जब वो सेल्स जो हैं सेल सस्पेंशन पे को उसको शेकर के ऊपर रख के आप शेक करेंगे, तो उसमें बहुत ज्यादा फ्लास्क को फुल नहीं कर देना। अगर आपने 250 ml की फ्लास्क, नॉर्मली जब सेल सस्पेंशन कल्चर प्रॉपर्ली इनिशिएट हो जाता है, तो 250 ml की एर्लन मेयर फ्लास्क आप यूज करते हैं उसके लिए, और उसमें 35 से लेके 45-50 ml तक कैलस और लिक्विड मीडिया ऐड हुआ हुआ होता है। ठीक है, 50 से
100 ml टू 50 ml फ्लास्क में इतनी रेशो होनी चाहिए। अगर 100 ml की फ्लास्क में है तो उसमें 20 ml कल्चर मीडियम होना चाहिए। इससे ज्यादा होगा तो वो फुल हो जाएगी और उसमें सेल्स को एरेशन नहीं मिलेगी, शेक। तो एक प्रॉपर आपने अमाउंट ऑफ सेल सस्पेंशन अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द फ्लास्क आपने मेंटेन कर, ठीक है। और शेकर की स्पीड 100 टू 120 आरपीएम तक आप ये पहले आपको बता दिया। अब यह है कि प्लांट सेल सस्पेंशन जो है इट कंसिस्ट ऑफ सेल्स विद डाइवर्स मोर्फोलॉजी एंड स्टेट ऑफ एग्रीगेशन। सारे सेल्स जो आपने सेल सस्पेंशन में मौजूद हैं वो एक जैसे नहीं है। कुछ सेल्स जो हैं वो सिंगल सेल्स हैं, कुछ अभी एग्रीगेट की फॉर्म में हैं, कुछ सेल्स जो हैं फ्राइबल हैं, कुछ एम्ब्रियोजेनिक हैं, कुछ डेड सेल्स हैं। सो ये सब के सब प्लांट सेल सस्पेंशन में मौजूद होते हैं। अब ये कि सेल ग्रो कैसे करें, जब आपने आप कैसे देख सकते हैं कि ये सेल सस्पेंशन के अंदर सेल जो है डिवाइड हो रहे हैं, अब ग्रो कर रहे हैं। सो दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ in which you can monitor the growth of the culture. There are different ways. पहले तो है कि यू कैन काउंट द सेल नंबर। जब आपने सेल सस्पेंशन इनिशिएट किया था उसमें कितने सेल थे, और जब आपने उसको आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम लाइक 2 वीक्स 3 वीक्स के बाद आपने उसमें से सैंपल लेके सेल नंबर काउंट किया है। इफ द नंबर initially was 50 cells and after 2 to 4 weeks it is now 200 or 250 cells, it is a clear indication that cells are dividing, their number is increasing. उसके बाद आप चेक कर सकते हैं पीसीवी, दैट इज पैक्ड सेल वॉल्यूम, ठीक है। और उसके बाद फ्रेश वेट और ड्राई वेट कैलस सस्पेंशन का आप देख सकते हैं। सेल वाइबिलिटी चेक कर सकते हैं। मीडियम के पीएच और कंडक्टिविटी से आपको पता चलेगा कि सेल्स डिवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो जो भी मेथड आप इनमें से यूज करें, ऑलवेज किसी एक मेथड के ऊपर आप रिलाई ना करें। अगर आप सेल नंबर देख रहे हैं तो पीसीवी लाजमी चेक करें, सेल वाइबिलिटी और पीसीवी कर लें। कोई कोई दो मेथड आपको यूज करने चाहिए इन ऑर्डर टू मॉनिटर द ग्रोथ ऑफ द सेल सस्पेंशन। अब बेटे एक और मैं स्केड्यूल कर तो लूं, लेकिन आई हैव टू गो टू जीसी फॉर माय मीटिंग। देयर इज अ बोर्ड ऑफ स्टडी, मैं उसकी मेंबर हूं, तो मुझे वहां पहुंचना है।